Very warm welcome and hope you all are in good health and safe at your home. As we all know, today the entire human race is going for the tough phase of their entire life, would say of the century itself, under this COVID pandemic. And different kinds of treatments are coming up to treat this COVID situation. And here and then we keep on listening that this medicine can take care of the COVID and this medicine can take care of the COVID. But the actual results of these are still pending. So in order to discuss a major role of homeopathy in the treatment of COVID or any other generalized disease, we say, because it's again a hit and trial phase that we are doing for the treatment of COVID. There's no sure shot that a prescribed format to treat a COVID patient. So today we have with us Dr. Sandeep Bhandari. Dr. Sandeep Bhandari is a well-known homeopathy doctor in Meerut and has a vast experience of 20 years. He did his BHMS from New Delhi and he passed HMD, Doctorate of Homeopathy from British Institute of Homeopathy, London. And Dr. Bhandari is a very kind person. He always keep on helping patients who are in need of the help and they cannot afford to get treated anywhere else. And also he is a member of various councils. He is also a member of Meerut Management Association. He is a member of Central Council of Homeopathy and Delhi Board. And he is specialized in treatment of chronic disease, kidney, liver and heart. And he has also successfully treated many patients with paralysis. So with this, I would like to welcome Dr. Sandeep Bhandari. Dr. Sandeep, welcome, heartily welcome on behalf of Meerut Management. Meerut Management Association is a professional, non-profit body affiliated to All India Management Association with the aim to promote scientific management in industry and trade. It also undertakes training and consultancy to improve managerial effectiveness and competitiveness of its members. Meerut Management Association, formed in 1966, is registered under the Societies Registration Act 1860. The founder members of the association were Shri K.N. Mohan, Managing Director, Mohan Meekins Breweries, Shri Sultan Singh Jain, Managing Director, Saru Smelting, and Shri R. Sahai, General Manager, Dorala Sugar Works. And before starting for the today's session, there are a few questions that are coming up to my mind, I think. So the entire audience is also keen to listen to all those queries that have been going during this pandemic. There and then we keep on receiving messages that this medicine can take care of this oxygen level and this medicine can take care of this oxygen level. Firstly, I would like to understand what is homeopathy, because what we have learned from our childhood days that the entire concept of homeopathy is what's different from what we do in allopathy. So there's a tremendous difference in the terms of treatment, how allopathy treat the patient and how homeopathy treat the patient. And we have heard that homeopathy is slow and steady wins the race. It's kind of a situation like that. It cannot be having a... I really would like to pen down few things which you really want. It's become a bigger list. So it'll be better if you tell me 1 or 2 points which I can really cover up. And in the whole session, I would like to completely satisfy the queries which you have really put forward right now. Sure, I think so. The platform is yours. You can continue with all your experience and we'll come up with the new questions as and when it is required. The platform is yours. Sure. Right. Thank you. And greeting from my side. Good afternoon, everyone. I really would like to thank Gaurav for giving me this opportunity to explain this very beautiful topic, role of homeopathy in COVID scenario right now. As we all know that there is sudden surge and spike in COVID number of cases. Similar spike you must have seen in the WhatsApp, Facebook, social media messages suggesting good number of remedies that this can work or that can work. So this platform definitely is going to give me opportunity to clarify that particular thing also. I'll be covering each and everything.
I think now let us start with what homeopathy actually is, because the important part is like we should be aware what homeopathy is, so we'll be able to understand how it works and what all are the roles in the coming times. It will be easy for us to explain that. So first I'll tell the important part, like what homeopathy is. It is a natural science. It's a gentle method of treatment in which there are 3 laws which are taken care of. Firstly is like, cure, like, law of similar. Now this sounds very familiar to more or everyone, that this law of similar, like, cure, like, wants to say a medicinal substance has a property to cure those set of symptoms which it can produce in a healthy individual. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. हमारे घर में एक कॉमन चीज मिलती है, नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसको अगर हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग को रिपीटेडली फॉर्म में दिया जाए और कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स उससे हमें मिलते हैं, तो वो नमक जो है एक दवा की तरह यूज किया जा सकता है. ऐसे ही नमक है, ऐसे ही प्याज का यूज किया जाता है, एलियम सीपा वाली दवाई जो अगर आपने सुना हो इसके बारे में. तो ये सब चीजें जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन सब सब्सटेंस की जो हमारे घर में और कई जगह आपने आजकल एक हल्दी का नाम भी बहुत ज्यादा सुना होगा, करक्यूमा, लौंगा के नाम से आता है. सो सेकेंड लॉ आता है इसका, द ग्रेटर द डाइल्यूशन द ग्रेटर द पोटेंसी, द लॉ ऑफ infinite dosage. This is like if we dilute that sodium chloride, that salt part, to certain level where it is non-traceable, the property of curing, the inert property, the energy increases up to a level. Higher we go, higher the increase the property of curing actually. The potency जितना हायर चले जाते हैं हम, लाइक आपने सुनी भी होगी होम्योपैथी में आपको सुनने को मिलता है 30 पावर, 200 पावर, 1000 पावर. ये सब लॉ ऑफ डायनामाइजेशन के थ्रू बनाई जाती है कि एक पार्ट आपने एक मेडिसिनल सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड का लिया और उसमें 99 पार्ट एक अल्कोहल या जो भी व्हीकल उसको एनहांस करने के लिए यूज किया जा रहा है वो ऐड किया गया उसके अंदर. एंड देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन, सकशन, और वो उसको डायनामाइज करके उस पावर का एक पार्ट लेके फिर दोबारा से सेकेंड पोटेंसी बनाई जाती है. तो इस रिपीटेड प्रोसेस से वी रीच अप टू 30 पोटेंसी, and on that repetitions we reach up to 200 and then to 1 m and 10 m. So higher we go, if we try to electronically trace out the element which we really potentized, that does not exist, but the energy keeps on increasing. और एक तीसरा लॉ है, an illness is specific to individual. That is the best explained thing, जो शायद हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देता है कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स, एक सेट ऑफ कंप्लेंट के अंदर हर इंडिविजुअल में अलग अलग रहते हैं. आपके घर परिवार में ही जितने लोग होंगे, आप सबसे अगर पूछेंगे, किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्म अच्छा लगता है, किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है. तो सेम कंडीशंस के अंदर, सेम सिनेरियोज में एक इंसान के लिए दूसरी दवा दी जा सकती है और दूसरे के लिए दूसरी दवा दी जा सकती है. अब मैंने अभी आपको बताया, जैसे एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का, नाट्रम्यूल, वो कोल्ड कॉफ और एल्सा में यूज की जा सकती है. कुछ पेशेंट्स के अंदर कंप्लेंट्स में यूज की जा सकती है. एक ही परिवार के अंदर सेट ऑफ सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज अलग अलग यूज की जा सकती हैं. तो इस तरह से हम पेशेंट को जो एनालाइज करते हैं, वो प्राइमरी गोल्ड स्टैंडर्ड एक आता है इंडिविजुअलाइजेशन का, यानी कि a person as a whole that comprises of his mental symptoms, physical symptoms, journal symptoms, and along with that many other compositions, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से भिन्न करता है. ये तो रहा थोड़ा सा एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन होम्योपैथी के रिगार्डिंग. एक और चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग मोर अबाउट इट, कि होम्योपैथी का रोल हम लोग अक्सर देखते हैं कि मॉडर्न साइंस और इसमें कई ऐसी कंप्लेंट्स बताई जाती हैं जिनमें पेशेंट हमारे पास जब रिपोर्ट लेके आता है, मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा. व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इनिशियल डेज के अंदर, हमें भी लगता था कि ये कंप्लेंट ऐसी हैं जिनमें इरिवर्सिबल चेंजेस जो हमें पढ़ाया भी जाता था. पैथोलॉजिकली ऐसा चेंज आ चुका है आपके शरीर के अंदर जिसे हम वापस नहीं कर सकते.
जैसे अगर आप सोचें इस्केमिक डिसऑर्डर, जैसे हार्ट अटैक आता है एक एरिया में, खून का थक्का रुकता है आके और उस हार्ट के एक सेल को डैमेज कर देता है। ऐसे ही किडनी में चेंजेस आते हैं, नेफ्रोटिक जो नेफ्राइटिस वगैरह में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, यानी कि किडनी फेलियर अगर आपने सुना हो कभी, तो जो ग्लोमेरुल्स हैं किडनी के वो काम करना बंद कर देते हैं, मेडिकल रीनल डिजीज नाम दिया जाता है उसको, पेरेन्काइमा में चेंजेस आ जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फिल्ट्रेट प्रॉपरली, तो अकुमुलेट करने लग जाता है आपके शरीर में टॉक्सिन्स। सो दैट इज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, आई केम अक्रॉस केसेस वेयर देयर वाज grade 2 level of nephrotic disorder, medical renal disease. This is irreversible. ये वापस नहीं की जा सकती, ये चेंजेस नहीं किए जा सकते वापस। ये पेशेंट मेरे पास जब आया था, इसका क्रेटिनिन काफी एलिवेटेड था। मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ, जस्ट टू ब्रिंग अ स्मॉल थिंग टू योर परसेप्शन दैट हाउ इट वर्क्स। अब ये क्या है कि जब वो पेशेंट मेरे पास आया, उसका क्रेटिनिन काफी एलिवेटेड था, मुझे भी ऐसा रिपोर्ट्स देखने के बाद लग रहा था इरिवर्सिबल लेवल पे, बट पुअर पेशेंट थे, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड डायलिसिस, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड renal transplant also, so they insisted, it was referred by some of my old patients, and they insisted कि नहीं सर आप इलाज शुरू करिए। I started treating that patient, and this is to my astonishment, ये केस मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी, भंडारी होम्योपैथिक क्लिनिक के उस पे भी डाला हुआ है। उसमें मेरे पास प्री एंड पोस्ट मेडिकल एविडेंसेस हैं, जिसमें ग्रेड 2 मेडिकल रीनल डिजीज रिवर्स होके नॉर्मल रीनल पेरेन्काइमा की रिपोर्ट सेम हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल नोएडा से और जेपी हॉस्पिटल नोएडा की क्रिएटेड है, दोनों की दोनों रिपोर्ट्स वहां पे एविडेंट है। ये वाकई मेरे लिए, और इतनी खराब हालत में उस मरीज ने पूरा रिकवर किया विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। वो इरिवर्सिबल चेंजेस रिवर्स हो गए उस पेशेंट के अंदर, just because the medicine selected was on the base of individualization. उस पेशेंट को जो दवा दी गई थी वो उसके लिए most suitable remedy according to that complaint, according to that individual people. So इससे हमें ये समझना आसान हो जाएगा कि कोविड के अंदर भी आज अगर हम जो सिनेरियो देख रहे हैं कि जो डैमेजेस आ रहे हैं, प्राइमरीली एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल डिसऑर्डर्स हैं। हर जगह होम्योपैथी काम करे या हर जगह होम्योपैथी 100% रिजल्ट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ही केस ऐसा हम देख रहे हैं कि हर जगह एलोपैथिक मेडिसिन, आज ये नई बीमारी है, एज पर राइट नाउ आवर नॉलेज देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट फॉर कोविड राइट नाउ, देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट। What we are doing is a compilation and a set of things which have brought improvement in group of patients earlier. If you would have seen, हम लोग शायद with the passage of time देखते आ रहे हैं, पहले HCQ का बहुत अच्छा रोल बताया गया था, इस बार HCQ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है। रेमडेसिविर का रोल बताया गया, WHO ने उसके लिए थोड़ा ऑब्सोल्यूशन बता दिया। सो होम्योपैथी का एस्पेक्ट भी मैं वही बताना चाहूंगा कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें होम्योपैथी का रोल बहुत ज्यादा अच्छा है, यदि हमें मौका मिले वो केस को इंडिविजुअली हैंडल करने का, यानी इंडिविजुअलाइजेशन, पेशेंट के बारे में पुरानी जानकारी और प्रेजेंट जानकारी, उसके साइंस और सिम्टम्स। दूसरा सवाल इस समय ये उठता है वो ये है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में शायद हम 1-to-1 ये चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था इस सर्ज का, इस स्पाइक का, जो लोगों तक एक 3-4 दवाइयों के नाम पहुंचाए गए एकदम से, बिकॉज सब लोग के पास एक्सेस नहीं था होम्योपैथिक कंसल्टेशन का, और सब लोग उस मजबूरी से भी गुजर रहे थे कि घर परिवार में कोई कहीं एडमिट है, कोई कहीं परेशान है, कोई कैसे है। उन सब के बावजूद भी उनको वो प्रॉपर राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, तो एक सेट ऑफ दवाइयां 3-4 लोगों ने निकाली और वो होम्योपैथी की फ्लोट कर दी। बट मैं अभी भी यही लोगों को राय दूंगा कि कोशिश ये करें कि अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करे बगैर कोई भी दवा का चयन ना करें, कोई भी दवा ना इस्तेमाल करें, बिकॉज of the only reason which I tried to explain earlier, कि individualization is really important. Set of remedies, जो जैसे आपने आज, मैं एक नाम फिर दोबारा यूज करूंगा, अभी 3-4 दवाइयां आपने लगातार सुनी होंगी इन दिनों में। एक है एस्पिडोस्पर्मा, एक दवाई का नाम आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वेनेडियम 30। ये सब जो है दवाइयां, they might buy time for you, but they're not substitute for any oxygen cylinders, any oxygen support which is required. They might buy some time for you to arrange particular things, but they are not the substitute, and they are not the only remedies. But in case of pandemic, जो इंसान को अवेलेबिलिटी नहीं रहती
तकलीफ में होता है, जब कुछ अवेलेबल नहीं होता, जब समय नहीं आ रहा होता, तो ये जो मैसेजेस और ये सब चीजें जो हैं बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरा जो सबसे नुकसान इन दवाइयों को सजेस्ट करने का जो आया, वो ये था कि मार्केट में एक्चुअली इन दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, और जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, जिस पेशेंट को इसकी जरूरत है, उस तक हम ये दवा नहीं पहुंचा पाए। मेरे अपने क्लिनिक पे मैं अब ये एस्पिडोस्पर्मा का यूज पिछले कितने साल से करता आ रहा हूँ, तो जो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को इस दवा की जरूरत थी, आज उनके लिए अगर मुझे प्रोक्योर करनी पड़ रही है तो वो मुझे भी नहीं मिले। इसका सिर्फ एक सोल कारण रहा कि कुछ लोगों ने इसको होल्ड कर लिया कि अरे ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल नहीं पा रहा, ये लेके रख लो, क्योंकि ऑक्सीजन का सूरोगेट बता दिया। सो दैट्स अ मिथ व्हिच आई रियली वांट टू क्लियर कि इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑक्सीजन, बट इट डेफिनेटली माइट हेल्प इन बाइंग यू टाइम. It might help you in improving your condition at certain levels, but it is not at all a substitute. So, मैं आप सबके माध्यम से यही सब लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इस चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा हो, तो आप उसे एजुकेट जरूर करें कि प्लीज कंसल्ट योर होम्योपैथ बिफोर टेकिंग मेडिसिन. और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पास्ट में अगर आप होम्योपैथी का रोल देखें, वायरल इन्फेक्शंस जो बहुत सारे रहे हैं, लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, इन्फ्लुएंजा में, और इसमें हर्पीज में, मम्स में, वायरल गैस्ट्राइटिस के अंदर, इन सब कंडीशंस में भी होम्योपैथी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है. ये चीजें काफी हद तक प्रूव करती हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों की एफिकेसी वायरल इन्फेक्शंस के अंदर बहुत अच्छी है. हम पिछले कई सालों से हर्पीस जो एक वायरल डिसऑर्डर है, उसके अंदर काफी समय से काम कर रहे हैं. एक्यूट कंडीशंस के अंदर हर्पीस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है होम्योपैथिक दवाइयों से. और इवन हर्पीस ठीक हो जाने के बाद वायरल इन्फेक्शन जब सबसाइड कर जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं जो हर्पीस के अंदर, आपने पोस्ट हेपेटिक न्यूराल्जिया, उनमें भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है. करता है, जो नर्व की डैमेजेस हुए होते हैं उनको रिकवर कर देती है. उसी तरह से मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक चीज और बताना चाहूंगा जो कोरोना से रिलेटेड एग्जिस्ट करती है, दैट इज लॉन्ग कोविड, दैट इज पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम, जो एक नॉर्मल कोर्स में पेशेंट हाईली स्ट्रॉन्गर मेडिसिन को एक्सपोज किया जाता है, स्ट्रॉन्गर जिसे कहा जाए हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए एक लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, और लंग की डैमेजेस डेवलप कर जाती हैं बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन लंग्स. वायरल निमोनिया एक लेवल ऑफ डैमेजेस दे देता है. तो दिस पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम के अंदर भी होम्योपैथी एक बहुत सपोर्टिव और हेल्थ प्रोवाइडिंग थेरेपी साबित हुई है. पोस्ट उसमें वीकनेसेस में काम कर रही है, लंग्स में जो फाइब्रोसिस आ जाता है उसमें वर्क कर रही है. इसमें जो एक रिकरेंट कॉफ परसिस्ट करता है पेशेंट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड एस्पेक्ट में, उनमें काम कर रही है. अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि होम्योपैथी में यदि आपने नोटिस किया हो, हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो एक सेट ऑफ कंप्लेंट, लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ कॉफ. मैं आपको एक स्लाइड शो करना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट चेक आई विल बी एबल टू, बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद this techie thing. If you can see, this is our repertory which is explaining cough. In general, there are remedy for cough. I hope everyone can see this. 900 remedy for single condition called cough. Now this is what it is, which I was telling you. Out of 900, what suits you, that process, and that process of concluding the right remedy for an individual is called individualization of symptoms. Like गौरव जी से आप पूछा जाएगा, गौरव जी खांसी होती है आपको, तो गौरव जी जवाब देते हैं कि हाँ खांसी होती है मुझे. तो हाँ, खांसी कब होती है, किस वक्त होती है, किस चीज से ट्रिगर होती है, किससे आराम आता है, किससे बढ़ती है. और अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ लोग आपको आके एक ऐसा सिम्टम जरूर देंगे जो कि रेयर और अनकॉमन होगा. नॉर्मली लोगों से पूछा जाता है जी खांसी होती है तो उसमें क्या करें, बेटा पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, गर्म लेने से आराम मिलेगा, थ्रोट को आराम मिलेगा. ये घर में या परिवार में सभी लोग नॉर्मल फिनोमेना है. खांसी हो रही है तो अचानक से कुछ मुंह में मिश्री रख लो, खुली हवा में जाने से आराम मिल रहा है. बट देयर इज अ रेयर अनकॉमन सिम्टम गिवन बाय एवरी इंडिविजुअल, दैट
works as a magic key, as a gold standard for us. This rare and uncommon symptom in a complaint XYZ, कोई भी complaint, like कोरोना भी है, even कोविड निमोनिया एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें भी पेशेंट आपको अगर आपको कोई रेयर अनकॉमन सिम्टम दे रहा है हम लोगों को, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है टू कंक्लूड द राइट रेमेडी. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन. लाइक गौरव जी आगे कहते हैं कि मुझे खांसी में आराम मिलता है जब मैं रोटी खाता हूँ, और सॉलिड जैसे ही मतलब मेरे गले से उतरता है वो काफी देर तक मेरे थ्रोट को सूद कर देता है. एक पेशेंट ने मुझे एक बार आके कंप्लेंट बताई कि काफी समय से कॉफ चल रही है. कॉफ नॉर्मली है, ड्राई कॉफ बता रहे थे कि लगातार चलती चली आ रही है. बहुत पूछताछ करने के बाद नॉर्मली एक्यूट कंडीशंस के अंदर इतना पूछने का कई बार मौका भी नहीं मिल पाता, और पेशेंट भी ज्यादातर जल्दी में रहता है. नॉर्मली बताते हुए भी उसे अजीब लग रहा था, एक नॉर्मल सी खांसी है, उसके लिए मैं कितना क्या बताऊं. आके बताना शुरू किया और हमने भी दवाई दे दी. हफ्ते बाद पेशेंट आता है. सो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. वेल सेलेक्टेड रेमेडी, पेशेंट कॉफ बता रहा है, ड्राई कॉफ है, पानी पीने से आराम मिल रहा है, एसटी से एक्सवाइजेड कोल्ड से बड़ी थी, इससे बड़ा है. सब पूछने के बाद मालूम पड़ा नहीं, कोई रिलीफ नहीं आ रहा. और देन आई रियली हैव टू रीडू दैट केस. व्हेन आई केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर सिम्पटम वाज, इट स्टार्टेड व्हेन आई लॉस्ट माय फ्रेंड. बहुत ही क्लोज मित्र था उसका, उसकी मृत्यु हो गई थी आकस्मिक, और उस न्यूज को सुनने के बाद वो उसके क्रियाक्रम और बाकी प्रोसेस के अंदर सारा दिन लगा रहा. वहां जाने के बाद वापस ही व्हेन ही केम बैक, ही स्टार्टेड डेवलपिंग दैट कॉफ. फॉर मी दैट एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ वाज द की फॉर क्यूरिंग दैट कॉफ, व्हिच वाज परसिस्टेंट फॉर 2-3 वीक्स. 3 हफ्ते बाद मेरे पास आए थे, 1 हफ्ता मैंने भी वेस्ट कर दिया करीब करीब, शायद मैं उस चीज को कंक्लूड नहीं कर पाया, और पेशेंट उस चीज से इररिलेवेंट समझते उसने एक्सप्लेन नहीं किया. Last time, next visit में मैंने पूछना शुरू किया, I interrogated more and I came to know that the cause which basically created cough was grief, and it really worked as a key. Few doses, the cough was gone by 3 days. जो 20 दिन या महीने के अंदर कोई चेंज नहीं ला पा रही दवाई. इसके साथ साथ और चीजें, गौरव जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शायद उनको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यदि इसमें मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो. राइट, ओके. तो मैं ये कह रहा था, जब हम छोटे थे तो हमको ये समझाया जाता है बायो कॉम्बिनेशंस हैं, ये एक स्पेसिफिक आते हैं. वो आते थे हमारे टाइम में बायो कॉम्बिनेशन, जैसे कफ एंड कोल्ड का 6 नंबर आ गया, या कुछ गले खराब का आ गया 11 नंबर, टॉन्सिल्स का आ गया, फीवर का आ गया. तो कुछ ऐसी जनरलाइज मेडिसिन होती थी जो इट्स कॉमन फॉर एवरी देयर एंड देन डिजीज. तो हमको ये कहते हैं ये 4-4 गोलियां 2-2 घंटे में खाई जाओ, यू विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट. मीठी मीठी सी गोलियां होती थी, एंजॉय दैट गोलीज. तो ऐसा कुछ है क्या? क्या रेलेवेंस है उसकी? जैसे आपने कहा इट्स इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, तो उसका और इसका क्या रिलेशन है फिर? मैं बताता हूँ. देखिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफीज रहे हैं होम्योपैथी में. जैसे आपने नोटिस किया होगा, हर सिस्टम में डेवलप कर जाता है. आज अगर हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चेक करें तो एलोपैथिक सिस्टम में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो रेमडेसिविर को एडवाइस कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो शायद इससे कंप्लीटली डिनाई कर चुके हैं. अदर देन जस्ट रिड्यूसिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, रेमडेसिविर डज नॉट हैव एनी रोल. वेल, दिस इज नॉट माय डोमेन टू कमेंट ऑन मच, बट जो पॉइंट गौरव जी ने उठाया कि वो कॉम्बिनेशन नंबर्स, और ये जो एक कॉम्बिनेशन के अंदर दवाइयां दी जाती थी, एक नंबर 6 कॉफ के लिए दे दिया, ये दे दिया. दिस इज सुशलर्स 12 टिश्यू रेमेडीज. जो 12 टिश्यू रेमेडीज हैं, बेसिकली डॉक्टर सुशलर ने निकाली, और जो कंपाउंड्स थे 12, उनका एक कॉम्पोजिशन तैयार किया कुछ का, कि वो 12 सॉल्ट हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. किसी सॉल्ट की कमी से कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं, किसी सॉल्ट की कमी से कुछ सिम्टम्स आते हैं. जो हमारे शरीर का कॉम्पोजिशन है, उन्होंने उसको सिर्फ 12 टिश्यू सॉल्ट्स के अकॉर्डिंगली बना दिया. सिलिशिया यूज किया उन्होंने, कैलकेरिया फॉस यूज किया, फेरम फॉस यूज किया, नाइट्रम्यूर यूज किया उन्होंने, नाइट्रम फॉस यूज किया, कालीम्यूर यूज किया. सो ये ग्रुप ऑफ दवाइयां, जैसे 5 दवाइयां उन्होंने देखी. कालीम्यूर से अगर हम दें तो सिक्रीशंस के अंदर चेंजेस डेवलप होते हैं. नाइट्रम्यूर अगर हम दें, लगातार दें, तो कुछ वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से सिक्रीशंस को थोड़ा रिड्यूस कर देता है. सिलिशिया अगर हम दें, तो अगर वो कमी हो तो हमारे केराटिन यानी नेल्स, हेयर्स और इन सब पे अफेक्ट करता है. तो हर सॉल्ट का पर्टिकुलर इफेक्ट देखते हुए उन्होंने कॉम्पोजिशन बना दिया कि हाँ जी,
ड्यूरिंग कॉफ इन्फ्लेमेशन होगा तो फेरमफॉस यूज कर लीजिए साथ में, और साथ में गले में दर्द होगा तो मैग्नीशियम फॉस यूज कर दीजिए। और काली म्यूट डिस्चार्जेस को कंट्रोल करेगा। वो 3 दवाइयों या 4 दवाइयों को मिलाया और एक कॉम्बिनेशन बना के बायो कॉम्बिनेशन दे दिया, तो वो सॉल्ट आपके शरीर में रिप्लेनिश कर देता है। एक हद तक इन दवाइयों का इस्तेमाल नुकसान नहीं करता, पर ओवर ड्रगिंग ऑफ दीज थिंग कैन ऑल्सो लीड टू दिस सिम्टम्स इन योर सिस्टम। जो मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि जो होम्योपैथिक दवाओं की प्रूविंग की जाती है, वो जैसे सोडियम क्लोराइड हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल को दिया, जो जिसको कोई सिम्टम नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसको हमने 3 दिन तक 4 खुराक दे दी उसको खाने के लिए कहा, और 3 दिन के बाद उनको कहा कि आप अपना पेन पेपर रेडी रखिए, जब आपको जो जो चीज का आभास हो उसको नोट करना शुरू करिए। दिस इज द प्रूविंग ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। दिस इज हाउ वी केम टू नो एंड क्या क्या सिम्टम्स वो सोडियम क्लोराइड को खाने से लोगों के अंदर आए। कुछ में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्रीम्स आते थे, तो उन ड्रीम्स को नोट किया गया। कुछ में एक सेट ऑफ स्किन पे सिम्टम्स आए, वो नोट किया गया। कुछ में हेयर पे सिम्टम्स आए, लाइक प्रीमेच्योर ग्रेइंग डेवलप हो गई। कुछ कहा कि कंपाइलेशन करने के बाद ये ग्रेड गया कि भाई 100 लोगों में से करीब 70 लोगों के अंदर जुकाम पाया गया, कि उस दवाई को लेने के बाद, उस सब्सटेंस को लेने के बाद जुकाम हुआ, नाक से डिस्चार्जेस ज्यादा हो गए। तो वी कंक्लूडेड दैट दिस इज द हायर ऑर्डर ऑफ सिम्टम, यानी कि एक कोल्ड में एक बहुत अच्छा काम करेगी दवा। एंड दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड दैट सोडियम क्लोराइड, दैट इज नाट्रियम, कैन बी यूज बेटर इन कोल्ड। और फिर कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हमें मिले 50 लोगों के अंदर। वो कहने लगे कि मुझे रात को सपने आए, और सपने किस चीज के आते थे कि जो रॉबर इज रॉबरिंग माय हाउस, मैं उठ के घर चेक करता था। ये 50 लोगों ने क्लेम किया। तो ये सेकंड ग्रेड ऑफ सिम्टम हमें मिला कि ये 50 लोग बोल रहे थे, बाकी 50 को नहीं मिला, तो हमने उसको थोड़ा ग्रेड कम कर दिया और उसको भी इंपॉर्टेंट पार्ट में लिया। वो उस तरह से थर्ड और लास्ट ग्रेड सिम्टम्स वो थे जो बहुत कम सेट ऑफ मिले, मगर मिले एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। दिस इज हाउ वी आर एबल टू ग्रेड द रेमेडी along with this, and we are able to find the right minimum. इसलिए 12 टिश्यू रेमेडीज के अंदर इस तरह का कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, और एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ज्वाइन करके एक इजी मेथड से 4 सेट ऑफ दवाइयां दे दी गई, जो पेट के लिए, एसिडिटी के लिए और दर्द के लिए, वीकनेस के लिए दी जा सकती है। मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर संदीप ये है कि एज वाज वेरी एक्सप्लेन, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि होम्योपैथी को जनरलाइज देखा जाता है कि वो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाती है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक डिजीज, तो हम उसको ओवरकम कर पाते हैं। क्या ऐसे कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं विच कैन टेक केयर ऑफ कोविड, या और कोई जनरलाइज चीज, या हम वो लें तो इम्यूनिटी बूस्ट करें हमारी? क्योंकि आज का टाइम सर यही बात करते हैं, वी हैव टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड गौरव। ये पॉइंट मैं ऑलमोस्ट थोड़ा लास्ट के लिए लेके चल रहा था, बट मैं इसको बीच में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तो आपने पूछा इम्यूनिटी बूस्टर्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे घर में नॉर्मल कोर्स में सब मिलता है करीब करीब। आपने अगर नोटिस किया हो कि हम जो हमारे परिवारों में हल्दी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। वी ऑल आर यूजिंग दोस थिंग्स एज अ रेमेडी आल्सो नाउअडेज। करक्यूमा लौंगा, एम्बेला आंवला जो है, और साथ में अगर आप नोटिस करें तो अश्वगंधा, इसके अलावा गिलो एटिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये सब दवाइयों का कॉम्पोजिशन, काफी सारी दवाइयां ऐसे मिला के एक नॉर्मल इम्यून ड्रॉप्स मार्केट में इजीली। दिस कैन बी यूज्ड at your home by your home raw material if you're not able to produce it, and over usage or stronger aspect of those alkaloids are creating certain gastric issues in patients. जो काढ़ा लेने के बाद कुछ मरीज मेरे पास जो विजिट जब करे, उन्होंने बोला कि लगातार काढ़ा को लेने के बाद एक थ्रोट में गैस्ट्रिक इरिटेशंस, जो गैस्ट्राइटिस या इस तरह की डेवलप कर रही थी। सो आई एडवाइज मोर कि भाई आप कोशिश करें कि उसको बहुत ज्यादा पकाइए मत, सेट अमाउंट तक ब्रू करने के कंसेप्ट के देखिए, दैट वाज हेल्पफुल। और उसकी वजह से जिनको उससे दिक्कत आ रही थी, तो हमने अपने पास से ही एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप्स भी डेवलप किए, ग्रुप ऑफ मेडिसिन को ज्वाइन करा के मिला के, ताकि वो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो। अब दूसरी चीज पे मैं आना चाहूंगा, एक लीगा और सेंट्रल काउंसिल ने भी एक जारी की थी, अगर आपने देखा हो तो पिछली बार, आर्सेनिक हेल्प 30। अभी 3 दिन पहले माननीय ये चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग के दौरान भी ये डिस्कशन दोबारा उठा था कि व्हाट कैन बी डन फॉर दिस। उस दौरान एक रिपोर्ट वापस से शेयर की गई पे एक पैनल में कि आर्सेनिक हेल्प ने
करीब 77-78% एफिकेसी दिखाई है in different countries. I am not talking about India only. I am talking about different countries. Those who have taken this remedy during the course of ailment, before the ailment also. Yani it was a preventive, more like a vaccine. Equivalent results, equal to kind of vaccine. But efficacy की जहां तक जब तक आप दवा ले रहे हैं तब तक रहती है, एक सेट टेन्योर तक रह पाती है. वही चीज होम्योपैथी का सिद्धांत भी शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायनामाइजेशन और उस प्रोसेस के थ्रू जो एक माइन्यूट सब्सटेंस रह जाता है, अगर आप उसको कंपेयर करें तो वो वैक्सीन के साथ काफी हद तक सिमिलैरिटी रहती है कि डायनामाइजेशन और उस प्रोसेस का रिपीटली एक सब्सटेंस को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करके उसकी हेल्थ मतलब इन्फेक्शन क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज को हटाने के बाद उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इनॉकुलेट कर दिया जाता है तो प्रोड्यूस, ताकि वो एक अपनी आत्मरक्षा शक्ति से एंटीबॉडीज जनरेट कर पाए. दैट्स व्हाट वैक्सीन रोल इज. सिमिलरली होम्योपैथी में भी यही चीज रहती है कि माइन्यूट सब्सटेंस दिया जाता है, रिपीटेड डोजेज पे दिया जाता है, एक सेट इंटरवल पे दिया जाता है, व्हिच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ अ पेशेंट एंड इट हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग आल्सो. दैट पर्सनली आई हैव सीन दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, उनकी फैमिली में कुछ लोगों को ऑलरेडी ये दवाइयां दी जा रही थी, तो उनमें कुछ ऐसे मरीज रहे जिनको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ में हुआ तो वो सिर्फ माइल्ड सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ हुआ, बहुत ही रेयर मॉडरेट और सिवियरिटी की तरफ गए, वो परसेंटेज बहुत ले. ये रिसेंट अभी कुछ दिन पहले ही लीगा पे भी मेंशन किया गया था, आर्सेनिक इज रियली वर्किंग एज गुड प्रिवेंटिव रेमेडी एंड एज अ इम्यूनिटी बूस्टर आल्सो. Thanks, very well explained, Dr. Sandeep. So ऐसा ना हो कि आर्सेनिक की भी शॉर्टेज होनी शुरू हो जाए. So हाँ जी, आर्सेनिक की नहीं आर्सेनिक की शॉर्टेज नहीं होगी क्योंकि उसकी डोजेज बहुत मिनिमल लेनी है. पहले एस्पिडोस्पर्मा और इन सब की तरह से लोगों ने तो घर खूब सारी अरेंज कर ली. आर्सेनिक डेफिनेटली इज हेल्पिंग पीपल. okay, that's great. ये सिर्फ मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये रिकमेंडेशन तो पिछले साल आयुष मंत्रालय की तरफ से भी काफी बार रिलीज हुआ है. But I think so. Ayush Mantralaya काफी active in terms of homeopathy and other streams of medicine, right? Right. I think so. एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, किसी को साइनोसाइटिस है जिसको you can go and read in chat. I think so. These are questions that we can talk to one by one. That would be more appropriate. जैसे आपने कहा individualization है किसी चीज की रेमेडिएशन का. Definitely, I would really appreciate you forward my number to those people who are really interested in that kind of chat, so I can answer those questions personally. ये साइनस से रिलेटेड थोड़ा मेरे को भी टच करता है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ साइनस का. मुझे बहुत सारे साइनस था और I have gone through a surgery of my nostril as well, but frankly saying this all useless at the end. जो मुझे मेरे घर वाले पहले कहते थे मैं वही ट्रीटमेंट यूज कर रहा हूँ and absolutely fine. मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ एक जल नीति करता हूँ और अपने नोस्ट्रल्स में मैं सरसों का तेल लगाता हूँ and that really helps me. I have taken medicines n number of times. गौरव जी, आप so many medicines with respect to this sinus, homeopathy, allopathy. I have done treatment for months for sinusitis in allopathy, months of treatment I have done in homeopathy, but at the end of the day I feel there are two things that aggravating my sinus. One is pollution. So what driving scooters and going open and around, I usually drive car now. First that saved me, and then I started this Jal Niti, and second I start using आपका सरसों का तेल, mustard oil, in my nostrils after every day after a bath. So this really helps me. अब देखिए सरसों का तेल ना शॉर्ट हो जाए मार्केट में कहीं. अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. ये आपने अभी जो पॉइंट रेज किया था कि एक हेल्थ की डेफिनेशन यूज की जाती थी, फिजिकल मेंटल वेलबींग. तो एक अपग्रेड आया हेल्थ की डेफिनेशन, दैट वाज फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. इम्यूनिटी का इन सब चीजों के साथ बहुत ज्यादा लेना. यदि आप मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं, हमारे लिए भी सिम्टम्स ऑफ मेंटल सिम्टम्स आर हाईएस्ट ग्रेड. तो मैंने आपको पहले केस के डिस्कशन में भी बताया था कि पेशेंट को बिकॉज ऑफ ग्रीफ वो डेवलप की हो तकलीफ उनको. तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर मेंटल स्टेट पेशेंट का एक पॉजिटिव
और एक अपनी हेल्थ को लेके जागरूक होना, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहना, मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, ये सब कंपाइलेशन ब्रिंग्स द एग्जैक्ट इम्यूनिटी, नॉट जस्ट द ग्रुप ऑफ ड्रॉप्स, नॉट जस्ट आर्सेनिक, नॉट जस्ट टेकिंग समथिंग। तो अगर आप कंप्लीट वर्किंग करेंगे अपने सिस्टम पे, तो आप शायद उस बीमारी को, यदि आप मतलब पकड़ भी लेते हैं, तो आप उसको उससे लड़के निकालने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज्यादा रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी इंसान को फियर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक और चीज मैं आपको इसके साथ अभी फियर के साथ ही याद आ गया, रिसेंट टाइम में आपने अभी देखा होगा, ये काफी लोग इस चीज से परेशान भी हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ catching this contagious disorder right now, and it is a strong contagion. Homeopathy is such precise. There is a rubric in homeopathy, fear contagious disease also, and there are remedies for that. We are covering patients who are having excessive anxieties, excessive fears of either catching, or because of that their immunity are going down, they're having suffering from palpitations, they're not able to step out in particular region, or they're not able to like वो डर उनको इतना ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उनको ओवरकम करने के लिए भी होम्योपैथी एक बहुत कारगर ऑल्टरनेटिव है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने होम्योपैथ से मिलें, बात करें और उससे राय लें। आजकल हम इस कोविड दौरान में जो हो पाए तो हम लोगों के घर तक भी दवाइयां पहुंचा रहे हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू उन लोगों की तकलीफों का काफी हद तक समाधान करें। I think so. This is something. और कुछ गौरव जी, आप कुछ और? I think so. This is really wonderful. You are doing to helping patients by reaching them to their doorstep. With this, we do have a few audience that are coming up with questions. We'll take 4 or 5 questions from the audience, if you permit me. Sure. So we do have Ms. Garima. I think so. Garima ji, you would like to ask a question? Doctor, I wanted to ask: is there a cure for atopic dermatitis in homeopathy? My 7-year-old kid is having atopic dermatitis, and since the last 6-7 months, and his skin has become really bad. बहुत ज़्यादा एटोपिक डर्मेटाइटिस भी एक ऑटोइम्यून काइंड ऑफ डिसऑर्डर है। तो इस जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अगर आप देखें, लाइक ब्रोंकियल आस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कई ऐसी कंप्लेंट्स हैं, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, दे आर बेसिकली elicited because of some or the other allergic component in either in the internal system or external system, like intrinsic or extrinsic factors. बाकी ट्रीटमेंट इसका है, इसके लिए बाकी आप गौरव जी से संपर्क करके नंबर ले लीजिएगा, तो we can really come up with something for treatment and all. रेस्ट हम शायद आज का जो कोविड रिलेटेड है उससे रिलेटेड और कुछ पूछना चाहें तो आप प्लीज बताएं। That's it. फिर मैं कांटेक्ट करती हूँ आपको, बाद में करती हूँ। थैंक यू। श्योर। I think so. अशोक गोयल जी का कोई क्वेश्चन है? अशोक गोयल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। Very nice discourse by Dr. Bhandari. My question is with respect to arsenic. I would like to know, first of all, what should be the dose of arsenic intake as a precautionary during COVID time for an adult in a day? And the second is related to this, in case somebody is taking like turmeric, haldi wala doodh and kada, etc. So can we take it simultaneously, or then one has to stop the other things? वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन अशोक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, धन्यवाद आपका। इसके माध्यम से और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी कि व्हाट इज टू बी टेकन एंड हाउ इट इज टू बी टेकन। काढ़ा और टर्मरिक आप यूज कर रहे हैं तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मल आपने अगर सुना हो तो अब्रॉड में आजकल एक टर्मरिक लाटे सेल की जाती है, दूध में कच्ची हल्दी को घिस के उसको टर्मरिक लाटे बना के सेल किया जाता है, एंड इट्स वेरी पॉपुलर। इंडिया में हम कई सालों से हल्दी वाला दूध पीते आ रहे हैं। अब आप उसमें कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। सेकेंड थिंग, काढ़े का भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप चाहें तो आर्सेनिक अपनी जगह काम करेगी, काढ़ा और उन सब चीजों का अपना रोल रहेगा। वो सब कंपोनेंट हमारे रोजमर्रा के खाने के अंदर इंक्लूडेड है, इसकी वजह से कुछ हद तक हमारे शरीर में ऑलरेडी जा रहे हैं। पर हाँ, मैं आपको यही राय दूंगा, किसी भी चीज का अधिक उपयोग नुकसानदायक हो जाता है, तो अधिक ना करें,
स्मॉल मात्रा में करें। यदि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं तो बहुत ज्यादा काढ़िए मत काढ़े को, कम क्वांटिटी तक ब्रूइंग के सिस्टम पे वर्क करके देखिए, वो आपको ज्यादा तकलीफों में आराम तो देगा ही देगा और तकलीफ नहीं ऐड ऑन नहीं करेगा। और आर्सेनिक की जहां तक बात है, आयुष मंत्रालय ने 30 रेकमेंड करें। 30 पावर जो है आप सुबह और शाम आज एक्यूट वक्त के दौरान में 3 दिन तक लेने के बाद दिन में एक बार कुछ दिन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है फॉर एडल्ट पीपल राइट नाउ रिक्वायरमेंट इज 200 डोज, लाइक आर्सेनिक 200। मैं वैसे ये रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज ये रिकमेंडेशन का एक उपयोग ना होके दुरुपयोग होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हुई हैं। बाकी जो गौरव जी कह रहे थे कि कल आर्सेनिक शॉर्ट हो जाए, पता लगा। पर ये फैक्ट है कि थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए आपको, तो अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके उनसे ही आप परचेज करें। स्मॉल क्वांटिटी में अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि एक खुराक आपको सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है 3 दिन तक, और उसके बाद एक खुराक रोज लेनी है। 5-7 दिन लेने के बाद एक दिन छोड़ के ले सकते हैं बहुत आराम से। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर इम्यूनिटी ऑल्सो एंड टू कम्बैट in case you like come across any COVID patient also. Thank you very much. Very nice response. I'm obliged. Thank you very much. डॉक्टर संदीप, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ऑडियंस से. आई वुड लाइक टू रीड आउट द क्वेश्चन. इट्स इन द चैट. डॉक्टर, आफ्टर कोविड देयर आर साइड इफेक्ट like increase in quantity of mucus. Is there any effective homeopathy medicine for this, especially for immunity of lungs? सर, मैंने अभी अपने उसमें एक कवर भी किया था, लॉन्ग कोविड पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम ड्यूरिंग दी हॉस्पिटल स्टे. आपने नोटिस किया होगा. अभी यदि किसी को आपत्ति ना हो तो मैं आपको एक छोटा सा एक रिसेंट केस और शेयर करना चाहूंगा. अभी जानकारी में मेरे एक मित्र हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनकी माताजी को कोविड हो गया. ही इज एडमिटेड इन नियर बाय हॉस्पिटल राइट नाउ. शी इज एडमिटेड, सॉरी. जो 24 तारीख का सीटी स्कैन था उनका, वो सिर्फ लेफ्ट लंग लोब जो है, लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था. 29 को मेरे पास जो दोबारा जो उनका एक्सरे आया, उसमें कंप्लीटली दोनों लंग्स इन्वॉल्व थे. लोअर लोब भी इन्वॉल्व था, लिटरली भी इन्वॉल्व था, इवन एपेक्स तक भी इन्वॉल्वमेंट. तो 24 से लेकर 29 तक के अंदर ये 4 या 5 दिन की डेवलपमेंट हॉस्पिटल स्टे के अंदर भी. उस दौरान उनको रेमडेसिविर भी लगा, उस दौरान उनको लो पैरन इंजेक्शंस भी लग रहे थे, यानी कि उनके ब्लड थिनर्स भी दिए जा रहे थे. उस दौरान वो स्टेरॉइड पे भी थी. उस दौरान वो बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे ऑक्सीजन सपोर्ट भी थी उनके पास. इन सब के बावजूद कंडीशन 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कंप्लीट डिटोरिएट होते थे. अब ये सब के अंदर अगर आप ये देखें कि जो एक स्टेटमेंट अभी इनिशियली मैंने दी थी कि आज तक देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कोविड. जो चीज हमें बचाएगी वो हमारी आत्मशक्ति बचाएगी, हमारा आत्मविश्वास बचाएगा, और हम लोगों की अपने शरीर के प्रति करी हुई मेहनत बचाएगी. यदि आप पॉजिटिव रहें, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, तो डेफिनेटली आपको ये दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आएगी भी तो आप उससे लड़के उसे बाहर निकाल पाएंगे. आप उन सब कंडीशन से इंप्रूव होके आएंगे. अब ये लॉन्ग टर्म इंटेंसिव केयर स्टे के अंदर, यानी प्रोलॉन्ग्ड डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइडल यूजेज के बाद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज डिप्लीट कर जाते हैं. व्हेन वी कम आउटसाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, वी डेवलप फ्यू डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, जो मैंने लंग फाइब्रोसिस और इन सब के लिए भी बोला था. लॉन्ग इंटेंसिव केयर, लॉन्ग कोविड के अंदर इन सब कंडीशंस में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल रहा है. एंड ये पिछले साल के जो कुछ मरीज थे जो पहले, अभी तो लॉन्ग स्टे के बाद आने शुरू हो गए, जो पिछले कोविड अटैक के ड्यूरेशन में जो लोगों को दिक्कतें आई थी, उनको हम ट्रीट कर रहे थे. एंड दे रियली इम्प्रूव्ड वेरी वेल. And it was really helpful in treating those patients with excessive mucus secretions. Even slight exertion पे dyspnea अगर आप देखें, थोड़ा सा चलते थे तो सांस फूलने लग जाता, एक sense of weakness यानी फील होने लग जाती थी. उन कंडीशंस में भी इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया with this set of homeopathic remedies. I think so more important is to be positive during this situation. Very important. It's very important. My general message to everyone who is right now on board is to try and spend some time exercising and keeping yourself positive. Talk, share some good jokes. In fact, आप जितना हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे, मैं नहीं कहूँगा समाचार पूरे दिन बंद कर दीजिए, मगर कुछ देर के लिए देखिए. उसके बाद आप अपने सिस्टम को पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए किसी ऐसी चीज
जरूर फोकस करें जो आपके उस समाचार वाली जो थोड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट जो डेवलप करे हैं उनको वाइप ऑफ कर सके, चाहे वो स्पिरिचुअल मेथड हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आप अपना काढ़ा बनाएं, परिवार के साथ खेलें, जो लोग अकेले हैं वो फोन पे बात करें किसी से, चाहे जूम मीटिंग इस तरह की ऑर्गेनाइज करें। और मैं तो गौरव जी को ये और कहूंगा कि अगर हो पाए तो नेक्स्ट कोई ऐसा वो क्रिएट करें प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सब हम सब लोग मिलके एक बार कुछ वक्त के लिए उस तनावग्रस्त स्थिति से निकल के हंसें। आप आजकल व्हाट्सएप पे एक और बहुत खूबसूरत मैसेज देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर डॉक्टर्स और नर्स और सब लोग मिलके नाचते हुए नजर आते हैं, काफी लोग शेयर कर रहे थे। ऑल दिस इज हेल्पिंग एक्चुअली पीपल कमिंग आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। Yeah, I think so. During this pandemic, it's more important to be happy, to be away from the It's negative very thoughts, right, and to be self-motivated. That's the prime goal, I think so, at this point of time. So we line up with few more questions, but we'll take 2 or 3 questions. Mr. Ujjwal like to ask a question. Ujjwal ji, please go ahead and ask a question. हेलो। Yes, please. सर मुझे एक्चुअली साइनस इशू है और लगभग ये मुझे 1 से 2 साल से परेशान कर रहा है और राइट साइड मेरा ज़्यादातर ब्लॉक रहता है, परमानेंट ब्लॉक ही रहता है। तो इस टाइम के अंदर मुझे काफ़ी डर लगता है बाहर निकलते हुए, क्योंकि ज़्यादातर ये मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही कवर करता है कोरोना। तो मुझे मतलब डर लगता है और इससे भी मुझे मतलब छुटकारा पाना है। तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो सर ठीक रहेगा, क्योंकि म्यूकस वाइट जेली जैसा बनता है। और हेलो जी। उज्जवल जी, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। मेरे ख्याल इस चीज के लिए आप जी से नंबर ले लीजिएगा और यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एंड यू कैन शेयर द कंप्लीट डिटेल्स एंड व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट नाउ यू कैन व्हाट्सएप मी द कंप्लेंट एंड ऑल सो वी कैन कनेक्ट देयर, दैट विल बी बेटर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके डॉक्टर संदीप, एक क्वेश्चन आजकल रहता है लोगों को, एक भ्रांति सी है, चाहे थोड़ा सा गला खराब हो तो हो सकता है मुझे कोविड हो गया हो। वो डिस्टिंग्विशनेस, वो जो एक बॉर्डर लाइन है विच डिफाइन नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन और नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन एंड कोविड, दे आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। बट आम लोग उसे जज नहीं कर पाते। जैसे लोग होता है, अच्छा मुझे वायरल हुआ, थोड़ा सा 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेट्स स्किप द मेडिसिन। तो उस टाइप को कैसे एनालाइज करें? वो बड़ी ही थिन बॉर्डर लाइन है, इट्स वायरल इन्फेक्शन, इट्स कोविड। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गौरव जी आपने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिस्टिंग्विश करना कि वो कोविड थ्रोट इन्फेक्शन है या वो है, ये डॉक्टर के लिए भी मुश्किल आसान नहीं है। आज के वक्त में जब आपने नोटिस किया हो कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, घरों में एक ठंडे पानी का इस्तेमाल या बर्फ का इस्तेमाल वापस से शुरू हो गया। नॉर्मल कोर्स में अब लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि सर गले में दर्द हो रहा है। तो आप एक बैक हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है इसके अंदर। अगर आप लोगों का किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहा रिसेंट पास्ट में, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर जब किसी इंसान को कोरोना होगा, यानी अगर वो पॉजिटिव होगा भी, तो वो इमीडिएटली उससे भी नहीं पता लगेगा, 3-4 दिन तक वो लेके गले में और वो बाकी लोगों तक घूमता फिरता रहेगा। और उस दौरान अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि एक हल्का सा मसाला सूंघने से भी छींक आई, तो वो एयर में वो स्प्रेड कर सकता है। और वो अगर किसी इंसान ने इनहेल कर लिया तो वो उसके म्यूकोजा को एडहेयर करके वो उसके नाक में रह सकता है और वो उसकी आत्मरोधक क्षमता उसे बाहर भी निकाल सकती है, उससे लड़के बगैर एक बीमारी आए ठीक भी कर सकती है। तो ये जज करना पाना बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ ध्यान जो रखना है, अपनी प्रीवियस फ्यू डेज की हिस्ट्री को ध्यान रखना है। क्या आपने ट्रैवल किया, क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले और वो भी बहुत क्लोजली जिसने ट्रैवल किया और ज्यादा समय के लिए, और या क्या आपने खाने पीने में किसी तरह की बदपरहेजी, जैसे कुछ कई पेशेंट जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि अचार या बर्फ या ऐसा कुछ यूज करने के बाद मुझे दिक्कत आई। तो यदि ऐसा सब कुछ नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोविड नहीं है। 2 या 3 दिन तक अपना उपचार जो नॉर्मल है, निगलेक्ट किसी भी सिम्टम को ना करें, उपचार जरूर करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 3 दिन तक अगर ये आराम नहीं आ रहा तो एक RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं, उससे कतराएं नहीं। मैं यही सजेस्ट करूंगा सब लोगों को कि यदि कोई भी सिम्टम या कोई एहसास ऐसा फील हो रहा है और वो परसिस्ट कर रहा है 2 से 3 दिन तक और सिम्टम्स बढ़ रहे हैं आपको आराम नहीं आ रहा, तो फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करें समय रहते और अपना जांच जो है वो जरूर कराएं, उसे निगलेक्ट ना करें।
क्योंकि अगर आप जांच समय पे करा लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, आइसोलेट जरूर हो परिवार से, ताकि आप अपने परिवार के बाकी लोगों को स्प्रेड ना करें। हो सकता है आप उस बीमारी से लड़के बहुत आराम से निकल जाएं, आपके परिवार का ही कोई सदस्य उस बीमारी से ना लड़ पाए। तो वो सोचते हुए आइसोलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो जांच कराना भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेड कर पाना हमारे लिए एक्चुअली इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ वेदर के अंदर और हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से भी ये दिक्कतें डेवलप कर रही हैं। So I think so the key is to be isolate. I think so that's the prime, and keep monitoring your symptoms. Key is to take care in case you are going out, you are meeting people and the number is increasing and the distance is less. Now आप ये सुन रहे होंगे एयरबॉर्न हो गया है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन आप हवा से अटैच कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप कहाँ रहते हैं, जहां आप रह रहे हैं, क्या आपके आसपास की विसिनिटी में लोग बहुत नजदीक रह रहे हैं, their population is on very higher side, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन आपसे पहले छींक के गया है उस रोड या उस ट्रैक पे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप घर के अंदर रहे ज्यादा, और घर के अंदर भी मास्क लगाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि यदि आपके घर की और आपस की जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टेंस कम है या क्लस्टर ज्यादा है, आपके घर के बैक साइड में क्लस्टर बहुत ज्यादा है या फ्रंट में है, कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत जगह हो सकती है, बट शायद जो आप एडजॉइनिंग हाउस है उसमें ज्यादा लोग रह रहे हो और वो क्लस्टर ज्यादा हो, दैट कुड बी अ रीजन, that could be a point of concern which might create some infective state at your place also. So you have to be cautious. You keep on doing that normal. इसीलिए steam inhalation बार-बार suggest किया जा रहा है कि healthy duration में भी दिन में अगर आप कहीं थोड़ा बहुत interact कर रहे हो तो एक बार steam inhale कर लीजिए. High temperature of steam helps in improving that particular localized infection जो आगे जाने भी नहीं दे रहा. I think so बहुत ही relevant था इस टाइम के लिए इस talk का होना. It's been really helpful. एक motivation है लोगों के लिए. We will take one last question. Ankur, you are expecting a question from you. Hello, Doc. Good to see you. Thank you, Ankur ji. Sir, I have a question that during this second wave of COVID, we are continuously receiving articles on various symptomatic changes that has happened with the second wave. जैसे earlier we had just 2 or 3 symptoms. Now we are given to understand that the symptoms have increased or there is an addition to the list of symptoms. So would you like to recommend or guide, especially us, especially the non-medical people, that which symptom needs what importance, and any point of caution for us that, you know, what changes do we feel in ourselves that which requires immediate action, or, you know, which can wait for a few days, or any lifestyle changes that we notice in our daily life, something which rules out the chances of delayed diagnosis, which is happening very common. Again, we are given to understand कि diagnose time पे नहीं हो पा रहा, diagnosis difficult हो गया है. So to rule out these things, would you like to recommend any points of caution for us? Right. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी आपने जो अभी तक शायद डिस्कस भी नहीं हुई, डिलेड डायग्नोसिस. उसकी रिगार्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि पहला फैक्टर हमारा अपना हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम जरूर एग्जिस्ट करता है, जो हम उसको हायर ग्रेड पे रखने के लिए, अब मैं आपको यही कहूंगा कि नॉर्मल कोर्स में एक हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक गुड स्लीप मिले हमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिन की शुरुआत सही समय पे हो, और अगर हम सुबह जब उठते हैं तो उगते सूरज के दौरान अगर हम कुछ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं तो विटामिन डी की प्रेजेंस में हम वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हमारे लंग्स की स्टेट डेफिनेटली और इंप्रूव करेगी. वी शुड वर्क मोर ऑन आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कीप आवर लंग्स फिट बाय माइल्ड एक्टिविटीज. वी शुड नॉट लीड आवर, मतलब जो लाइफ सेडेंटरी भी हुई थी, जो हम बैठ के निकाला करते थे, यदि हमें इस लॉकडाउन में समय में अगर ऐसा मौका मिला है. और उसके रिगार्डिंग मैंने अभी एक क्वेश्चन का आंसर दिया था गौरव जी के कि हम आसपास लोगों के अगर रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा घर आसपास हैं और डिस्टेंस लोगों के बीच में कम है, तो कोशिश करें अपने रूम में किसी तरह एसी चला के, या अगर किसी के पास अगर ऑप्शन हो एयर प्यूरिफायर का तो वो यूज करते हुए नॉर्मल योगा एक्सरसाइजेस इस तरह की कुछ करते जरूर रहें. ये एक्टिवनेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू मेंटेन योर इम्यून सिस्टम एट अ हायर लेवल, जो कि बीमारी आने से पहले भी और बीमारी के दौरान आपको लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. और सेकंड एस्पेक्ट आपका था डिलेड डायग्नोसिस के लिए जो एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जो है वो उसमें इस बार एडिशन कुछ जो है वो है डायरिया, जो कॉमनली कुछ इन दिनों में देखने को मिला है कि कुछ लोगों को कोविड डायरिया भी आ रहा है.
सिम्टम 3 दिन तक वही नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार। यदि बुखार परसिस्ट करता है आपका, खांसी जुकाम बुखार का आपको कोई अननोन ओरिजिन लग रहा है, कारण नहीं मिल पा रहा, तो उसे निग्लेक्ट ना करें, कंसल्ट करें अपने फिजिशियन को समय रहते। 24 घंटे आप एक नॉर्मल एक बुखार की गोली खा के निकाल सकते हैं, अगले दिन आप जांच करवा के देख सकते हैं। अगर ये सब इसके क्राइटेरियाज वो रहेंगे कि बैकड्रॉप में आप क्या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है पहले, क्या आप नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर आपके साथ दिक्कतें एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या आप नॉर्मल चलने में आपका सांस फूल रहा है या आपको दिक्कतें हैं कुछ, यानी अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा ड्यूरिंग दिस वेरी टाइम कि जिन लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो वैक्सीन करा सकते हैं, they should go ahead for vaccination because this really helped. It has really helped. You can very well see there is a shortage of oxygen right now. There is a shortage of right now remdesivir. There are shortage of many things. But at this same very time, doctors, almost the first line people who really got vaccinated, they are experiencing infections, but they are coming out well. Why the system vaccinated the doctors so that they should not get the shortage of basically doctors only. क्योंकि यदि अगर वो ज्यादा रहता, वो इन्फेक्शन रेट बहुत हायर रहता, तो और समय रहते वैक्सीनेशन ना की जाती तो ये सेकेंड वेव में शायद डॉक्टर्स की भी कमी देखने को मिलती। तो मेरी राय यही रहेगी, लोगों को जिनको मौका मिल रहा है वैक्सीन जरूर कराएं, वहां पे भी भीड़ का ध्यान रखें, कोशिश करें। कुछ समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे देश में, और उन चीजों पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि अपना ध्यान हमें खुद रखना है, हमें अपने आप को खुद बचाना है, हमें हमारे डायग्नोसिस में भी खुद देखते हुए यदि कंप्लेंट परसिस्ट कर रही है तो हमें तुरंत अपने कंसल्टेंट से जांच करानी है, उससे संपर्क करना है, और उसके बाद यदि कोई टेस्ट या कोई एडवाइस की जाती है तो उसे प्लीज फॉलो करें। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू। आई थिंक सो वेरी वेल आंसर योर क्वेश्चन। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो जैसे एक बॉलीवुड का क्वेश्चन है ना, सलमान खान की शादी कब होगी। आई थिंक सो आजकल लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन है, कोविड कब खत्म होगा। सर ये भी, अब गौरव जी आप बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, मगर एक समस्या है, इस समय हम लोग पॉजिटिव बात नहीं कर रहे कोई भी। ये इस सवाल का जवाब मैं जानते हुए भी नहीं दे पा रहा हूँ इस समय, कि अगर हम पूछे जवाब देंगे भी तो लेकिन एक पुरानी हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो एवरी पेंडेमिक डाइड नेचुरल डेथ। ये उस टाइम की बात है जब साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, तब की बात बता रहा हूँ, स्पेनिश फ्लू और ये सब। आज तरक्की के बावजूद भी अगर नेचुरल डेथ देनी है तो करीब करीब लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन को इकट्ठे वैक्सीनेट होना, वो हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो पेंडेमिक अपना समय लेगा जाने में, आप उसके लिए तैयार रहें, आप अपने शरीर को उसके लिए इतना ताकतवर बना दीजिए कि वो आपको तकलीफ दिए बगैर निकल जाए। इनफैक्ट लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो पहले भी हुए थे। अगर आपने पिछली वेव में सुना हो तो एक सीरम सर्वे हुआ था मेरठ का, उसमें काफी चौंकाने वाले रिजल्ट आए थे। हम लोगों को कईयों को सिम्टम्स ही नहीं आया और सबके सब एंटीजन मतलब सीरम के अंदर पॉजिटिव आ रहे थे, एंटीबॉडी सबके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी काफी लोगों के अंदर। उनसे पूछा भी गया कि किसी को कुछ पता नहीं लगा कि उनको कोई सिम्टम्स आए थे नहीं। मुझे ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम कि कितने ऑथेंटिक रहे ये टेस्ट या क्या था, पर लोगों को हुआ था, बहुत माइल्डर आया इन्फेक्शन, क्योंकि वो जब इकट्ठे काफी लोगों को एक ही वक्त में तकलीफ आती है तो उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली थोड़ी हल्की होती चली जाती है। लार्जर पीपल गेट इन्फेक्टेड फास्ट। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जहां लोग क्लस्टर्स में रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, जहां पे जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, वो जल्दी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके बाहर निकल जाती है मसले में। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में बड़ा टिपिकल सा आया है, वो आजकल मैं जरा न्यूज ज्यादा देखता हूँ, तो आई हैव हर्ड दैट ये जो कोविड का ग्राफ है लाइक अ साइन वेव, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे ये सेकंड फेज है, देयर वुड बी थर्ड फेज, सेकंड फेज, फोर्थ फेज, तो ये इस वुड बी अ टाइम गैप और क्या सिस्टम है इसका, मतलब हाउ डू वी डिटेक्ट एंड हाउ वी कैन बी कॉशन अबाउट इट। थोड़ा मेरे डोमेन से बाहर जा रहा है, मैं स्टैटिस्टिक का आदमी हूँ नहीं एक्चुअली। और आप ये सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े पंडित लोग जो हमारे प्रधानमंत्री और इन सबको भी कोई ऐसी गाइडलाइन दे नहीं पाए कि सेकेंड वेव इस लेवल तक आएगी, इंडिया के लिए कोई ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं थी।
इंडिया को जब फर्स्ट टाइम पे कोविड आया था तो लोग कहते थे कोविड तो हिंदुस्तान ने चबा के खत्म कर दिया, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इस कदर दिक्कतें डेवलप कर जाएंगी। इनफैक्ट अगर हम आज से ठीक 1 महीना पीछे चले जाएं तो शायद लोगों ने वैसे ही नॉर्मली मिलना जुलना शुरू कर दिया था, मास्क हटा दिए थे, प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे। और अब हमारे अपने उसका कारण भी लॉजिकल रीजन भी रहा। अगर हम देखें तो मेरठ में आंकड़े जो है 4400 टेस्ट होने के बाद क्यों आ रहे हैं, कुछ समय तक जीरो आते रहे। अब ये म्यूटेशन जैसे हम इंसानों ने म्यूटेट किया, डेवलप किया अपने आप को, अपने सिस्टम को एज द टाइम ग्रू, ऐसे ही ये वायरस भी चेंजेस ला रहा है, म्यूटेशन। इसके ज्यादा अच्छे आंसर्स शायद आपको और बेटर साइंटिस्ट दे पाएंगे। मेरे डोमेन से थोड़ा ये बाहर का क्वेश्चन है कि मतलब इसका क्या हो सकता है, क्योंकि आगे प्रेडिक्शन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड करंट सिनेरियो में इस बार की इसको देखने के बाद तो शायद ऑलमोस्ट इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। वेव डेफिनेटली फैक्ट है, जितनी ग्राफ ऊपर गया है हर कंट्री के अंदर तो स्टार्ट अकॉर्डिंगली अगर हम करते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आए। It's been very enlightening and helping everyone to tackle this COVID situation as we are going through this COVID phase, second phase, and probably things will get settled down and people will be aware of their health. I think so. Health is more important at this point of time. Doing a lot of exercises and mental stress need to be calmed down at the very space. I think so. The human race was going a bit at a faster rate, and the nature itself has come up with the idea to just slow down the speed of the entire human race. I think that this is the right time. We need to sit down and think about what nature wants from us. I think so. This pandemic has given us a sense that we really need to understand the lifestyle that we are living is not a right one to live longer. So with this, I would like to end and I request Mr. Ankur to please present the vote of thanks. Ankur. Thank you, Gaurav. This is not the first time that we are hearing Dr. Sandeep Bhandari. Of course, this is the first time on a platform that we are listening to what Dr. Bhandari has to say about various medical issues. People who are active with Meerut Management Association must have heard him earlier also. On behalf of the working committee, the members of Meerut Management Association and the audience, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Bhandari for sparing out time and giving us a motivation that जो भी है वक्त ये निकल जाएगा. We normally say that this too shall pass. Dr. Bhandari has tried to put this in a very subtle medical language that जो भी है जैसा भी है अगर अच्छा समय कुछ टाइम तक चला बंद रहा तो बुरा भी कुछ टाइम बाद बंद होगा, फिर अच्छा आएगा. हालांकि गौरव हैज गिवन अ पॉइंट ऑफ स्कैरी थॉट कि अगर साइन वेव है तो वो जो अच्छा टाइम आएगा फिर खत्म होके बुरा आएगा. So, but I think with the help of such sincere doctors and medical warriors, we are fighting it out and we will definitely come out of it one day. Dr. Bhandari, my sincere thanks to you for sparing out time. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. मैं 2 एडवाइजेस और साथ में जो मैं पहले देना चाह रहा था मगर बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन सेशन में रह गया, मैं बोल नहीं पाया. एक तो मैं सबको यही एडवाइस करूंगा, कोशिश करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक अनुलोम विलोम जरूर करें. और एक ओमकार साधना एक ऐसा मेथड है जिसमें ओम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इट इज आ म. आई ट्राई टू डू इट इन फ्रंट ऑफ यू if it is possible to make you understand. आप कोशिश करें इसको यूज करके. It creates a resonance in our system and even the vibrations help in fighting back. That creates a immune response which is really helping people. It is So if we use these ओम शब्द का रिपीटेड उच्चारण जो है हमारे चेस्ट में एक रेजोनेटिंग वो क्रिएट करता है. दैट रियली हेल्प्स आउट इन इंप्रूविंग द चेस्ट कैपेबिलिटीज. So with these breathing exercises, if people try to continue, we might be able to fight back in a better form.
Over to Jaggi once again. Thank you. Sorry to Thank you. interrupt. Thank you once again for the last piece of advice. I'm hopeful that a lot of us will try and follow this, because this is something that can be done sitting at home. We don't need any preparations for this. Subah uthkar kar sakte hain whenever you have time during the day. I would also like to extend my thanks to our president, Shri Gaurav Kumar Jain, for organizing a talk on this much needed topic, for organizing a Sunday motivation session, I would call it, because itna depressed atmosphere mein, when every other WhatsApp is a suspense, whether it will be a joke or a good news or a sad news from anywhere in the society. My sincere thanks to Gaurav Kumar Jain and team for organizing a motivation session with Dr. Bhandari. And in the end, my sincere thanks to all those people who are with us as audience to listen to what Doc had to tell about homeopathy and the current COVID situation. I am sure together we have fought this disease earlier also, and this time we too shall again be able to fight it. With this, I would hand it over back to President Gaurav. Thank you, Dr. Bhandari. Thank you, Gaurav, once again. Thank you. Once again, a heartfelt thank to Dr. Bhandari and Ankur for this lovely vote of thanks. And thanks to the entire audience who have given us a time and being patient with us to listen to what Dr. Bhandari has to say and what MMA has to say about this COVID. And with the end, I would like to once again make an appeal that each and every individual has a different requirement and different set of medicines they need. So before taking any medicines, I would request you should consult your doctor first. So with this, I would like to say, you be safe at your home, be in good health, and stay safe. Do a lot of exercises and self-motivate yourself and others also. Thank you, everyone. Have a great day. Bye-bye.